देखो ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਮੀਟਿੰਗਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, SHA ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ कोई घट तो घट जो तो ये सरकार बनी है साड़ियाँ कोई 18-19 मीटिंग सारे ना हो चुकी हैं। हर वेले सानू आश्वासन दिता गया, पर साडी तकलीफ की है कोई सुनने नूं तैयार नहीं। जिहड़ी सानू कई बारी गल लगदी है वो ये है कि या तो ये सुनना नहीं चाहते तो या इन्हां दीयां की मनसूबे ने, मेरी गल समझ तो बाहर है। तुसी ये सोचो कि असी जे मान लो किसी एक हस्पताल वालों महीने दे विच 5-6 लाख रुपए का इलाज करते हैं तो एक तो जो ट्रीटमेंट है वो पैकेज बेस्ड होंदा है, ਉਹਦਾ जो इन्होंने प्राइस फिक्स किया होया तुसीं उन्ना ही चार्ज कर सकते हो तो पेशेंट तो लेना होंदा है। मान लो एक पेशेंट ने हार्ट का स्टेंट होया तो वह गवर्नमेंट ने कोई 90,000 रुपया जो देना सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25-30,000 का स्टेंट आ गया, 25-30,000 की दवाई आ गई तो कोई 25-30,000 रुपया जो टेक्नीशियन स्टाफ नर्सिज ਜਿਹੜਾ बिजली का बिल टैक्सिस वो चले गए। इन द एंड ऑफ द डे हस्पताल में कोई 5-6-7,000 रुपया ਉਹਦੇ ਚੋਂ बचना होंदा तो ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ गए। और मैं ये गल कहना है कि आप कल्ली हस्पतालों की गल ना करिए, पिछले कोई 6 साल तो यह स्कीम जी है चल रही है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 1100 1200 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ PGI ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ PGI ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ PGI ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਓਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, DMC ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ SPHC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ट्रीटमेंट हो सके। ओके, आयुष्मान भारत स्कीम जो एक्चुअली बहुत अच्छी स्कीम की तरह शुरू हुई थी। जैसे हम लोग सुनते थे बाहर अब्रॉड में, दूसरे बड़े देशों में, अमेरिका वगैरह में एक नेशनल इंश्योरेंस होती है, सोशल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तहत इसी तौर पे एक ये स्कीम शुरू करी और इनिशियली बहुत अच्छी चली। जब उसके रेट्स आए तो प्राइवेट हॉस्पिटल के हिसाब से वो बिल्कुल डर्ट चीप, मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं बहुत कम रेट थे, लेकिन फिर भी सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इस हिसाब से, मोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ली कि ये लोगों को एक सेवा देने का एक बहाना ही है। तो आयुष्मान भारत स्कीम हमने भी ली और पंजाब में बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने शुरू करा और अच्छा काम भी किया। लेकिन फिर धीरे धीरे जो सरकार की हॉस्पिटल्स की को जो भी एजेंसी पेमेंट रिलीज़ करती है उन्होंने पेमेंट्स देनी जो हैं वो स्लो कर दी और फिर बंद ही कर दी। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनकी पेमेंट्स जो है काफ़ी देर तक जो है वो रुकी रही और अभी भी इनफैक्ट जो है पेमेंट्स रुकी रही। सो IMA पंजाब ने ये निर्णय लिया
कि जितनी आयुष्मान भारत जो है हम अभी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करेंगे जब तक कि जो पुरानी पेमेंट सरकार क्लियर नहीं करेगी। तो बहुत सारे अथॉरिटीज़ ने एश्योरेंस तो दी है, लेकिन जब तक वो पेमेंट्स आएंगी नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ये कर पाएगा। सर बात कीजिए कितना समय हो चुका है कि जब बंद हुई है स्कीम में? काफ़ी समय हो गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये बंद कर चुके हैं स्कीम्स। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब ये आयुष्मान स्कीम नहीं चल रही। लेकिन आप अगर देखो कि एक हर हॉस्पिटल की एक क्रेडिट उधार देने की क्षमता है। एक जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी थोड़ी शायद ज़्यादा देर के लिए कैपेसिटी हो, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनकी कम कैपेसिटी है। तो आयुष्मान भारत के रेट्स वैसे ही इतने लो हैं कि उनसे बस खर्चा निकल जाए इतना ही बहुत है। सो उसमें कोई हॉस्पिटल का प्रॉफिट या कोई डॉक्टर्स की फ़ीस भी पूरी नहीं होती, कई केसेस में ऐसा है। तो इतना हो जाए कि जो दवाइयों का खर्चा है वो पूरा हो जाए तो भी हॉस्पिटल खुश हैं ये स्कीम आगे चला के। लेकिन उसके लिए भी जो एक क्रेडिट होल्डिंग है कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, कब तक हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो पेमेंट्स को अपनी जेब से करेंगे। वो एक स्टेज पे आके वो फिर मतलब बंद करना पड़ा, जिसमें नहीं हो सकता। सेकेंडली, अभी पीछे सरकार ने एश्योरेंस दिया था, जैसे जम्मू वगैरह बाकी स्टेट्स में आयुष्मान भारत HBP2 जिसको ये बोलते हैं, तो वो 2.0 के रेट्स थोड़े से बढ़ाए उन्होंने। जैसे कुछ ऑपरेशंस के रेट सपोज़ किसी का 30,000 था, उसका 35 कर दिया, लेकिन 90% रेट्स वहीं के वहीं हैं। सो आई डोंट नो कि इन द लॉन्ग रन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। बट सरकारी स्कीम, सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी ये चल रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी जब तक पेमेंट्स नहीं आएगी तब तक ये आगे नहीं चला पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, हरपाल चीमा जो वित्त मंत्री, उनका एक बयान जारी हुआ है जब PGI की जो कल घटना हुई है उसके बाद उन्होंने कहा कि 100 करोड़ जो है जल्दी जो है रिलीज कर दिए जाएंगे ताकि जो बकाया है राशि वो भी जो है भुगतान हो जाए, उसके बाद बाकी हॉस्पिटल को भी जो काम है सुचारू रूप से दोबारा चल सके। तो उम्मीद करते हैं आप? हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट एश्योरेंसेस पहले भी आ चुकी हैं। लेट्स होप दिस टाइम जैसे गवर्नमेंट कह रही है वैसे जो पेमेंट सारे हॉस्पिटल्स की पेंडिंग है वो निकलेंगी, और हम चाहते हैं कि अगर वो पेमेंट्स क्लियर हो तो IMA पंजाब दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे कि हॉस्पिटल्स जो हैं इस स्कीम को दोबारा, क्योंकि रोज़ पेशेंट्स आके पूछते हैं जी आपके पास आयुष्मान है कि नहीं है, लाइक दैट। सो हम चाहते हैं कि शुरू हो, पर उसमें एक तो पुरानी पेमेंट्स क्लियर हों, और दूसरा जो है थोड़े से, अगर आई डोंट नो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके ये रेट्स की बात होती है, लेकिन सरकार ने जो रेट्स रखे हैं वो सच्ची मुच्ची सिविल हॉस्पिटल के लेवल के ही रेट्स हैं। थैंक यू।